cast in stone. The shrine is an eternal place of devotion. A modern-day architectural and engineering marvel, is also a story of a journey towards enlightenment. An edifice chiseled with unrivaled beauty is one of the most visited places in India. Abode of a great saint who taught the virtues of humanity and universal brotherhood. This temple reflects India's ancient traditions and timeless spirituality. For the first time ever, this holy place has opened its doors for any filming. Giving a glimpse of what is life inside Akshardham. Located in the heart of Gandhinagar, the modern-day capital of Gujarat, Swaminarayan Akshardham Mandir, a divine abode of God, built in honor of Lord Swaminarayan, is visited by at least 2 million tourists around the year. A first of its own kind, this large temple complex is also one of the greatest spectacles of the city, rich and diverse in history, and known for many years for plethora of religious and historical sites. To call it just a temple may be incomplete. Akshardham houses the tenets of small yet a vibrant sect whose foundation was laid by an enlightened sage more than 200 years ago. पिता बड़े विद्वान और धार्मिक थे, पंडित थे, तो उन्हीं से भगवान ने भारतीय शास्त्रों का अध्ययन किया और साथ साथ भगवान स्वामीनारायण जी का जो बचपन है वो अयोध्या में व्यतीत हुआ था। अयोध्या मंदिरों की नगरी है और स्वामीनारायण जी को बचपन से ही मंदिरों में काफ़ी लगाव था। प्रतिदिन वे मंदिरों के दर्शन के लिए जाते थे और मंदिरों में जो सत्संग हुआ करता था वो कथा सुनते थे, रामायण की कथा सुनते थे, भागवत की कथा सुनते थे और इस प्रकार दर्शन और सत्संग उनका दैनिक जीवन क्रम था। उन्होंने 7 साल की उम्र में वेदादिक शास्त्रों का अध्ययन पूर्ण कर दिया था। 10 साल की उम्र में उन्होंने काशी में विद्वत सभा में शास्त्रार्थ में विजय प्राप्त की। 11 साल की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया और 7 साल तक पूरे भारत का परिभ्रमण किया। वो उनकी 7 साल की जो यात्रा थी उनके दौरान वे नीलकंठ वर्णी के नाम से जाने गए। Swaminarayan, one of the great saints to be born in India, spread the virtues of humanity and universal brotherhood through his methods of self-realization. Swaminarayan was born as Ghanshyam Pandey on April 3, 1781 in Chapaiya village of Gonda in Uttar Pradesh. It's documented that his spiritual journey began rather at a very young age when he was just 11.
Moving to different parts of the country, Swaminarayan covered a vast expanse of India. And after more than 9 years into his passage seeking spiritual enlightenment, he decided to settle in Gujarat in 1799. In Gujarat, Swaminarayan joined his guru and great yogi, Swami Ramanand, the founder of Uddhav Sampradaya, which has been termed as Swaminarayan Sampradaya after Swaminarayan was coronated as successor by Guru Swami Ramanand. उन्होंने अपना कार्य जो शुरू किया वह स्वामीनारायण मंत्र देने से किया, तो इसके लिए पूरा जो संप्रदाय है वह स्वामीनारायण संप्रदाय के नाम से पूरा जाना जाता है। तो स्वामीनारायण मंत्र उन्होंने दिया और उस वक्त वो जो कोई भी स्वामीनारायण मंत्र का जाप करता था उसे समाधि का अनुभव होता था और समाधि में अपने अपने इष्ट देव के दर्शन होते थे। 25 साल की उम्र में सहजानंद स्वामी ने एक साथ एक रात में 500 संतों को परमहंस की दीक्षा प्रदान की और उनके परमहंसों को कहा कि आप हर रोज़ 5 लोगों को शुद्ध जीवन जीने की प्रेरणा देकर बाद में ही खाना खाए, भोजन ले। अष्टांग योग के फलस्वरूप योगियों के लिए भी जो समाधि दुर्लभ थी, वो समाधि स्वामी नारायण जी की कृपा से लोगों को सहज में प्राप्त हुआ करती थी। और ऐसे कई कारणों से लोग स्वामी नारायण जी के प्रति आकर्षित होते रहे। हजारों लोगों का समुदाय बनता रहा और सारे भारत से दूर दूर से कई लोग उनकी ओर खींचे चले आए, उनके शिष्य बनते रहे। उसमें कोई मठाधिपति थे, कोई बड़े विद्वान पंडित थे, कोई महान संगीतकार थे, कोई अच्छे स्थपति थे, कोई बड़े नगर सेठ थे। A great social and spiritual leader, Swaminarayan was admired by not only Hindus but by Britishers, Muslims and even Christians. Today, the sect also referred to as Swaminarayan sect of Hinduism has grown many folds, and Akshardham is a central edifice representing the faith and along with that, teachings of that great saint. अक्षरधाम मंदिर जो है तो वैसे भगवान स्वामीनारायण को 1781 में 200 साल पूर्ण होते थे उनके जीवन को, तो उनका द्विजन्म शताब्दी समारोह मनाने का एक प्लानिंग था। तो उस वक्त भगवान स्वामीनारायण के 5वें आध्यात्मिक अनुगामी प्रमुख स्वामी महाराज जो रहे, तो एक विचार विमर्श चल रहा था कि ये द्विजन्म शताब्दी समारोह मनाया जाए और उसमें एक विचार यह आया कि भगवान स्वामीनारायण का ये द्विजन्म शताब्दी समारोह तो मनाएंगे ही, लेकिन भगवान स्वामीनारायण को श्रद्धांजलि के रूप में स्थायी रूप से भी कुछ बनाना चाहिए ताकि लोगों को कुछ ख्याल में आए कि भगवान स्वामीनारायण ये पृथ्वी पर आए और उनने कैसे कैसे कार्य किए हैं। अक्षर शब्द को संस्कृत में इस प्रकार से व्याख्यायित किया गया है, न क्षरति इति अक्षरः, मतलब कि जो कभी नाश नहीं होता है उस अविनाशी को अक्षर कहते हैं। और भारतीय दर्शन शास्त्र में, फिलॉसफी में, अक्षर होता है ब्रह्म, मतलब कि अक्षर जो है वो ब्रह्म है और अक्षरधाम वो भगवान स्वामीनारायण जो स्वयं परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण है उनका निवास स्थान है। जैसे आप मान लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान, उनका धाम गोलोक है, भगवान श्री राम का धाम वैकुंठ है, उसी प्रकार स्वामी नारायण जी का धाम अक्षरधाम है। The first of its kind place of worship built in the honor of Swaminarayan, Akshardham opened its door for public on October 13, 1992. Featuring the skills of more than 900 artisans, it took more than 13 years to build this beautiful complex spread over 23 acres in the heart of Gandhinagar. And it is a temple forming the center of complex which has been deeply appreciated for its rich architecture and spotless engineering. गांधीनगर अलग अलग सेक्टर में बटा हुआ है, तो देयर आर 30 सेक्टर्स इन गांधीनगर। तो योगी जी महाराज गांधीनगर के पूरे 30 सेक्टर्स जो है उसमें फिरे थे और जब ये 20 सेक्टर्स में अक्षरधाम आया हुआ है
तो अभी अक्षरधाम इमारत हम जो जहाँ देख रहे हैं, तो अक्षरधाम जो मंदिर है उसके पीछे एक बरगद का पेड़ है, उनके नीचे योगी जी महाराज खड़े थे और उसके साथ बाबूभाई जशभाई पटेल जो गुजरात सरकार के मंत्री रहे, वे भी उनके साथ में थे। और उन्होंने योगी जी महाराज को रिक्वेस्ट की कि ये सब माहौल देख के प्राचीन माहौल लगता है, तो आप एक मंदिर का निर्माण यहाँ कीजिए तो अच्छा रहेगा। तो योगी जी महाराज उनकी लाक्षणिक शैली में बहुत जेंटली हंसते हंसते उन्होंने, उनके हाथ में गुलाब की पंखुड़ियाँ थी, भगवान स्वामीनारायण के प्रसादीभूत पंखुड़ियाँ। तो अभी जो अक्षरधाम जहाँ उठ खड़ा है वहाँ उन्होंने ये पंखुड़ियाँ बिखेरी और उन्होंने दिव्य भविष्यवाणी, आर्षवाणी की कि भविष्य में यहाँ बहुत बड़ा मंदिर निर्माण होगा और यहाँ लाखों श्रद्धालु लोग दर्शन को आएंगे और जीवन गढ़न की प्रेरणा लेके जाएंगे। Standing for its unrivaled beauty and grand layout. Huge exhibition halls housing few holy remains of Swaminarayan himself and a spread of green covers studded with articles and motifs of India's greatest stories. The vast temple complex is also reflective of Gujarat's deep-rooted religious and cultural standpoint. स्वामी जी महाराज ने कहा कि कोई ऐसे प्रकल्प का निर्माण किया जाए, कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो कि भगवान स्वामीनारायण जी के व्यक्तित्व को रिफ्लेक्ट करती हो, उसके अनुरूप हो। और साथ साथ स्वामी जी का ये भी कहना था कि ये भारतीय संस्कृति जो सनातन है, उसी प्रकार ये मंदिर या ये स्मारक या भगवान का स्मृति चिन्ह अविनाशी होना चाहिए, हजारों वर्षों तक लोगों को प्रेरणा देने वाला होना चाहिए। और इसी कारण स्वामी जी ने कहा कि अक्षरधाम का जो मंदिर है वो हम स्टील या आरसीसी से नहीं बनाएंगे, उसको सनातन भारतीय शिल्प स्थापत्य परंपरा के अनुसार केवल पत्थरों से बनाएंगे। तो ये निर्णय प्रमुख साई महाराज ने 1978 में दिया। इट वॉज द क्रूशियल डिसीजन गिवन बाय प्रमुख साई महाराज इन 1978। और 1979 24 दिसंबर अक्षरधाम का जो शिलान्यास विधि वह किया गया, फाउंडेशन स्टोन्स लेइंग सेरेमनी, और प्रमुख साई महाराज ने अक्षरधाम की नींव रखी। The idea of building this temple was mooted by Swaminarayan's fourth spiritual successor, Yogiji Maharaj. As a guru, he is said to have sanctified over 60 temples and visited over 4,000 towns and villages across the country. Yogiji Maharaj was also pivotal in nurturing the growth of Swaminarayan's sect and a socio-cultural organization, Bocha Sanvasi Sri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, carrying forward the teachings of Swaminarayan. Established by Swaminarayan's third spiritual successor, Shastri Maharaj in 1907, Bocha Sanvasi Sri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, or BAPS, has been instrumental in the foundation of Akshardham Temple. The temple construction finally began under the tenure of Yogiji Maharaj's successor, Yogi Pramukh Swami Maharaj, in the year 1979. Following his mentor's advice, classical Indian design was chosen for this vast edifice. स्वामी जी का एक निरीक्षण ये भी था कि पिछले कई वर्षों से इस प्रकार के पिंक सैंडस्टोन का प्रयोग इतने बड़े मंदिर के निर्माण के लिए नहीं किया गया था। तो स्वामी जी ने सोचा कि क्यों न उस पत्थर को इस प्रकार से इस मंदिर के निर्माण में उपयोग में लिया जाए। तो यही वजह है कि ये राजस्थान के गुलाबी पत्थर को अक्षरधाम के निर्माण के लिए चुना गया। The scale of Akshardham's layout seeps in soon as one steps in. While the northern gate gives the first glimpse of main temple from a far distance, it's the eastern side
where an endless journey of this modern day architectural marvel begins. The facade is a busy display of top-class sculpting on the sandstone, with two minutely crafted pavilions on the either side of a heavily ornate doorway, completing the whole narrative of a forecourt designed in a classical style. A closer look at each of the motifs stands for welcoming those who queue up at the doors of Akshardham. Five swans make an immaculate beeline outside each of these two square pavilions, while a solitary elephant statue inside is depicted playing the drums to further sing in praise of the temple, as well as opening the divine doors for the devotees. Go closer to the grand doorway, one gets transported into a glorious past of classical Indian temple architecture. While a grand peacock adorns the center of the arch before the entrance, four peacock carvings encircles the pillar to make it even more breathtakingly ornate. This forecourt is a mere hint of what we are to see as we get inside the main temple structure, the Akshardham, housing the trove of vibrations and the very teachings of Swami Narayan. Crossing over the space, we reach exactly in the middle of Akshardham. It is the spot where one could feel surrounded by pious ambience all around.
आपके मठ में प्रवेश नहीं कर सकती? क्या आपकी दीवारें या किवाड़ मृत्यु को रोक सकते हैं? मृत्यु को तो कोई नहीं रोक सकता मेरे बच्चे। यदि मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता तो उसे डरने का कारण क्या? जीवन से मोह ही भय का कारण है। जहाँ मोह नहीं वहाँ भय नहीं। महंत जी बाल योगी से प्रभावित हुए
लेकिन अगर उन्हें अंदर आना स्वीकार न था तो महंत जी भला क्या करते। बालक की मौत निश्चित थी। भय नहीं, सिर्फ प्रेम ही नीलकंठ का एकमात्र प्रतिभाव था। उनके आध्यात्मिक प्रकाश ने हिंसक सिंह को अहिंसक बना दिया। नीलकंठ भीतर से शांत थे, इसलिए बाहर भी उनके आसपास शांति व्याप्त हो जाती थी। सुबह होते ही शेर जंगल लौट चला और शांति गांव में लौट आई। ग्रामवासियों ने नीलकंठ को श्रीपुर में ही रहने के लिए प्रार्थना की। नीलकंठ ने समझाया कि रोजाना जिंदगी के छोटे मोटे डर हों या मौत का डर, उससे मुक्त होने के लिए आत्मशक्ति की जरूरत है। नीलकंठ जहां भी गए, अनगिनत लोगों ने उनका प्रेम पूर्ण स्वागत किया। ये भारत के वो लोग हैं जो विश्व की सबसे ज्यादा विविधताओं से सभर हैं, जहां मानव अभिलाषा की हर तरह की अभिव्यक्ति है और हर तरह की जीवन शैली है। विश्व की सर्वप्रथम लोकतांत्रिक परंपराओं का जन्म हुआ था भारत में। इसका मूल है पवित्र वेदों में, जो सिखाते हैं कि सभी लोग मिलजुल कर जी सकते हैं, अनेकता में भी एकता हो सकती है। आज भारत अलग अलग धर्मों, परंपराओं और पृष्ठभूमि के 100 करोड़ से अधिक लोगों का घर है। यही एकमात्र ऐसा देश है जहां 18 विभिन्न भाषाओं को जन्म मिला है, जिनके अलग अलग मूलाक्षर हैं और 1600 से भी ज्यादा बोलियां बोली जाती हैं। लेकिन नीलकंठ के लिए जीवन का सही मर्म शब्दों में नहीं था, किंतु जीव प्राणी मात्र के प्रति प्रेम की मूक भाषा में था। नवंबर 1792 में नीलकंठ हिमालय में बद्रीनाथ पहुंचे। तब शीतकाल शुरू हो गया था। पूरा बद्रीनाथ थोड़े ही दिनों में बर्फ से ढकने वाला था। पूरा गांव नीचे गर्म स्थानों की ओर उतरने की तैयारी कर रहा था। नीचे चले जाना चाहिए। मंदिर के पुजारी ने बाल योगी नीलकंठ को अपने साथ चलने की विनती की, लेकिन नीलकंठ का लक्ष्य हिमालय में योग साधना और ध्यान करना था। पुजारी ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि पृथ्वी पर कोई भी स्थान मानव जीवन के लिए इतना कठिन नहीं
जितना दिसंबर में हिमालय। बाल योगी के जीवन के लिए चिंतित महंत ने पूछा कि इतनी कठिन यात्रा वे किस लिए कर रहे हैं। मेरी यात्रा कल्याण के लिए है। अकेले ही नीलकंठ ने पृथ्वी की कठोरतम जगह में सबसे घातक मौसम में प्रवेश किया। उनके सामने हिमालय के दुनिया के सबसे ऊंचे 30 में से 29 पर्वत शिखर थे, जिसमें महान एवरेस्ट भी था, 29,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचा। शून्य के नीचे 40 डिग्री तापमान में जब 100 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से कातिल हवाएं फुंकार रही हों, तब 20 मिनट भी खुले में रहना मौत का निमंत्रण है। किंतु नीलकंठ नंगे पांव खुले शरीर कैसे जीवित बच गए, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। भयानक बर्फीली घाटियों को पार करके नीलकंठ ने दर्शन किए पवित्र शिखर कैलाश के। वे मानसरोवर के किनारे पहुंचे। यह पृथ्वी की सबसे ऊंची झीलों में से एक है और भारत की 4 महान नदियों का स्रोत। नेपाल के अन्नपूर्णा क्षेत्र में नीलकंठ पृथ्वी की सबसे गहरी घाटी से गुजरे। 22,000 फीट से ज्यादा गहरी ये घाटी काली गंडकी नदी ने तराशी है। पर्वतों की ऊंचाइयों में नीलकंठ मुक्तिनाथ पहुंचे। यहां भगवान विष्णु का एक अति प्राचीन मंदिर है। इसके चारों ओर भगवान के 108 नाम के प्रतीक स्वरूप 108 पवित्र जल धाराएं बह रही हैं। यहाँ नीलकंठ ने अपने जीवन की कठिनतम तपश्चर्या प्रारंभ की। इस विलक्षण तप मुद्रा में निश्चल ध्यान मग्न नीलकंठ मन और शरीर से परे हो गए। समय के साथ ऐसी आध्यात्मिक साधनाएं उनके जीवन का प्रमुख अंग बनी रही। आज मैं आसाम में हिमालय में 4 वर्ष बिताने के बाद नीलकंठ पूर्व भारत की ओर चल पड़े। उनके वचनों को सुनने शहरों में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। धर्म स्थानों में जाकर नीलकंठ लोगों को अंधविश्वास और अंधश्रद्धा से मुक्त करके उनमें सच्ची भगवत श्रद्धा सुदृढ़ कराते रहे।
दुनिया के किसी भी देश में इतने मंदिर, इतने स्मारक और महल नहीं जितने भारत में हैं। प्राचीन काल से भारत में ऐसी वास्तुकला विकसित हुई जिसके द्वारा भव्य भवनों का निर्माण हुआ। पत्थर के बड़े बड़े स्तंभ और गुंबद बने जो हजारों वर्षों तक रहेंगे। इसमें असीम शक्ति और लावण्य का संगम है। मनोरम कलाकृतियां जिनकी रचना प्राचीन भारत की मूर्तिकला ग्रंथों के अनुसार हुई है, जिन्हें युगों से अनगिनत शिल्पकारों ने हाथों से तराशा है। देश का हर कोना अलंकृत है सुंदर स्मारकों से, महलों से और पत्थरों के अभेद्य दुर्ग से। यहां कई श्रद्धा स्थान हैं। भारत मंदिरों, गिरजाघरों, मस्जिदों और शिवालयों का एक पुष्पगुच्छ है। युगों से कला की विभिन्न परंपराएं यहां फली फूली। सुंदरता की ऐसी पच्चीकारी जो शायद और कहीं नहीं देखी जा सकती। 13वीं सदी में बना हुआ खजुराहो का मंदिर हजारों शिल्पों, अभिकल्पों, आकृतियों का एक अद्भुत संयोजन है। ताजमहल, जिसे दुनिया का एक आश्चर्य कहा जाता है और जो दुनिया भर में सबसे सुंदर परिमाण में बना स्मारक है। सांची का स्तूप, गौतम बुद्ध के सम्मान में इसे 2000 वर्ष पहले बनाया गया था। बौद्ध अनुयायियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण तीर्थ है। प्रसिद्ध सिख तीर्थ अमृतसर का स्वर्ण मंदिर जो सोने से आवृत है, और इलोरा में कैलाश की चमत्कृति जिसे एक ही पहाड़ी चट्टान से तराशा गया है। इसे बनाने में 150 साल लगे थे। इन मंदिरों एवं स्मारकों के उपरांत नीलकंठ पूर्व भारत के भयानक बरसाती जंगलों से भी गुजरे। हमेशा की तरह वे गोरक्ष आसन में निश्चिंत होकर सोते। वे बंगाल के सुंदरवन के जंगलों से होते हुए चलते रहे। घर छोड़ने के लगभग 5 साल बाद नीलकंठ पूर्वी भारत में जगन्नाथपुरी पहुंचे। यहां के राजा मुकुंद देव नीलकंठ से मिले और उन्हें रथ यात्रा के उत्सव में आने का निमंत्रण दिया। जगन्नाथपुरी के इसी रथ यात्रा उत्सव की विशाल भीड़ और विशाल रथ ने जन्म दिया अंग्रेजी के शब्द जगरनॉट को। पच्चीस 2500 वर्ष पुराने इस उत्सव का दर्शन करने भारत के कोने कोने से कोई 10 लाख यात्री आते हैं।
भारत में उत्सव आध्यात्मिक आनंद की अभिव्यक्ति है जो कभी संस्कृत मंत्रोच्चार से व्यक्त की जाती है। नए साल की शुरुआत होती है अन्नकूट उत्सव से, जिसमें हजारों शाकाहारी व्यंजन भगवान को अर्पण किए जाते हैं। प्रकाश का उत्सव दिवाली, जिसे आसुरी पर दैवी तत्व एवं अंधेरे पर प्रकाश की विजय के रूप में मनाया जाता है। पूरा भारत जगमगाते दीपों और आतिशबाजियों के साथ आनंद से भर जाता है। और ये रंगों का त्योहार होली, चरम आनंद और हर्षोल्लास का अवसर। भारत में लावण्यमय मुद्राएं, भव्य उत्सव या मंदिर के भव्य प्रवेश द्वार, सब कुछ भक्ति के ही विविध स्वरूप हैं। दक्षिण में नीलकंठ रामेश्वरम के प्रसिद्ध मंदिर में पहुंचे। 12वीं सदी में निर्मित इस मंदिर में लगभग 1 मील लंबी पत्थर की परिक्रमा है, जो दुनिया में सबसे लंबी है। भारत यात्रा करते करते नीलकंठ ने देखा कि भारत के लोग While the sun is setting at Swaminarayan Akshardham, take your seat on the ancient step well to experience the age-old truth, where the step well transforms into the courtyard of the heaven, where water plays with children, and they create a flower. But the Devtas from heaven are furious to destroy the flower. We're turning the pool into an ocean, and the ocean into a tsunami. Stones into fire, and water into volcano. Whooshing off everything, slicing the sky with piercing rays, and exploding it. But who wins? The flower or the power? Celebrate the victory with melodious music, colors, and dancing fountains.